Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication, to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform, will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, and I'm hoping all of you are doing well. So we are continuing and we are almost, last time मैं final oval की बात कर रहा था, अब मैं final ball की बात कर रहा हूँ. We are almost at the end of this particular topic, जिसका नाम था dissolution of partnership firm, जिसके अंदर हमने दो प्रकार के resolutions किए. हम दूसरा कर रहे हैं जो insolvency का situation है, और उसके अंदर one partner insolvency, two partner insolvency, and today we do all partner insolvency. ये particular question अगर आप मार्क करना चाहो, मैं तो आपसे नम्र विनंती करूँगा कि आप आपके टेक्स्ट बुक में मार्क करो कि ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है. क्यों है? वेल, ऐसी लंबी स्टोरी बोल के कोई मतलब नहीं है. एक्चुअली एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ. बाकी ये पूरे स्टेप्स है जो काफ़ी अलग है. क्यों अलग है? क्योंकि ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी के अंदर जितने पार्टनर हैं, आज के प्रॉब्लम में आप देखोगे, ओके, किसी के पास भी पैसा नहीं है. इसके लिए कुछ चीज़ें अलग की जाती है. ये पहले भी किया गया है, तो रिपीट कर देता हूँ जल्दी से, कि जो पेएबल लाइबिलिटीज़ है, मतलब क्रेडिटर, बिल पेएबल, बैंक लोन, ये होते हैं पेएबल. आपको इनको पैसे देने हैं. अच्छा, इनका अलग अलग खाता बनता है, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाते. अगर कोई पार्टनर का लोन है, उसका अलग अकाउंट नहीं बनेगा. मतलब आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, आप बिल्कुल उल्टा बोल रहे हो जी, क्योंकि जो सिचुएशन है वो काफ़ी अजीब है और उसके कायदे अलग है. तो जो कायदे वो बता रहा हूँ. पेएबल लाइबिलिटीज़, बिल पेएबल, क्रेडिटर, बैंक लोन अलग अलग अकाउंट में जाएंगे, उनका अलग अलग खाता बनेगा. पार्टनर का लोन अगर रहेगा, उसका खाता नहीं बनेगा. ऐसा क्यों? क्योंकि ये परिस्थिति ऐसी है कि जो बाहर वाले हैं, क्रेडिटर, बिल पेएबल, बैंक लोन, उनको पैसे देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि तीनों पार्टनर कंगाल हैं. तो जो पार्टनर का लोन है उसको तो कभी भी पेमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर वालों का पेमेंट नहीं हो रहा, तो इंटरनल वालों का पेमेंट कैसे होगा? इसके लिए पार्टनर का लोन इस परिस्थिति में पार्टनर के कैपिटल में लिख देते हैं, जैसे रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बांटना नहीं है, लिख देना है. ओके, हाँ. बाकी जैसे ही ये क्वेश्चन पढ़ लूँ, बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, खास करके फॉर्मेट. हाँ, फॉलोइंग इज दी बैलेंस शीट. 3 पार्टनर्स है इक्वल, प्रीति, प्रिया, प्राची. बैलेंस शीट में क्या है? कैपिटल, ट्रेड क्रेडिटर, लोन. एक अकाउंट ट्रेड क्रेडिटर, एक अकाउंट लोन,
दिया है सिक्योर्ड बाय मशीनरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है इसका कि मशीनरी के कागजात आपने लोन वाले को दे दिया, क्यों? क्योंकि लोन लिया ना, तो वो गारंटी मांगता है। तो कोई बैंक से अगर आप कभी लोन लो आपकी ज़रूरत में, तो बैंक बोलेगा तू वापिस नहीं देगा तो बैंक बोलेगा एक काम करो, आप तुम्हारे पास सोना है ना, सोना वो वाला नहीं, गोल्ड वो ला के रखो हमारे पास। अगर तू पैसा नहीं देगा हम तेरा सोना बेचेगा और हम पैसा रखेगा। उसी तरह ये लोन वाले को हमने हमारी मशीनरी नहीं दी, मशीनरी थोड़ी दे सकते, बड़ी चीज़ होती है ना, उसके कागजात दिए। जैसे इनको पता चलेगा कि हमारी दुकान का दिवाला निकल गया, जो दिवाला निकल गया क्योंकि सब लोग कंगाल हैं, तो मशीनरी बिक के जो पैसा आएगा सबसे पहले उस पर साडा हक एथेरक कौन बोलेगा? लोन बोलेगा मेरे को पैसे दो। पहले मशीनरी से बिक्री से जो पैसा आया है, इसका मतलब है लोन के लोगों का मशीनरी से बेच के जो पैसा आने वाला है उस पर सबसे पहला अधिकार है। ये पहले भी किया है हमने, आज भी कर रहे हैं, तो ये थोड़ा रिपीटेशन है। हाँ, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, ये तो डेबिट में चला जाएगा, बैंक में लिख लेंगे, P&L अकाउंट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। द फर्म वॉज डिसॉल्व ड्यू टू द इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स, सभी कंगाल। मशीनरी को बेचा 18,000 के लिए, फर्नीचर 14,000, स्टॉक 35,000। बेचना, पैसा बैंक में डालना, पर तभी के तभी उसके बाद मशीनरी का जो पैसा आया, ये मेरे ऊपर 18,000, वो आपको लोन को देना पड़ेगा, क्योंकि आपका उस पैसे पे साडा हक नहीं है, क्योंकि उसका कंट्रोल लोन वालों के पास है। तो लोन वाला बोलेगा चल 18,000 मेरे को देना पड़ेगा। फिर रियलाइजेशन के खर्चे 2,000 हुए, कर देंगे। नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम प्रिया एंड प्राची, कुछ नहीं मिला। हाँ, बट 3,400 कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम प्रीतिज प्राइवेट एस्टेट। ले लो भाई, मुसीबत जो प्यासा होता है उसको एक बूंद पानी भी मिल जाएगा ना, पानी, तो उसके लिए बड़ी बात है। क्लोज दी बुक्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द फर्म, सबसे पहली बात, कितने बुक्स ऑफ अकाउंट्स? अरे काफ़ी लंबी लिस्ट है, ये मेरे पीछे देख लो। तो एक क्रेडिटर है ऊपर, एक लोन है, उसके आगे लिखा है सिक्योर्ड बाय मशीनरी, और उस तरफ है डेफिशिएंसी। तो ये पूरा नक्शा आपको रेडी रखना है, आप पॉज कर सकते हो, रेडी कर लो, ओके, और फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहली बात, प्रिया प्राची का कैपिटल वो ठीक मेरे पीछे आने वाला है, तो ये आपको दिख गया 40, 35,000, 25,000। देन वेरी इंपॉर्टेंट, क्रेडिटर का खुद का अकाउंट, उसके अंदर क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। अपने दिमाग को बोलना, मतलब है आपको क्रेडिटर को 50,000 देना है, लोन के खाते में 30,000। अपने दिमाग को बोलना, लोन को हमको 30,000 देना है, लाइबिलिटी खत्म। एकदम ऊपर एसेट, मशीनरी 23,000, फर्नीचर 16,000, स्टॉक 47, टोटल बाहर डाल दिया। कैश एट बैंक उसमें डाल दिया 10,000, और ठीक मेरे पीछे, मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे पीछे, फिर वहाँ से निकल लेता हूँ क्योंकि पीछे तो वैसे भी आपको दिखने वाला नहीं है। P&L अकाउंट मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, कितना? इक्वल, 1/3, 1/3, 1/3, 28,000, 28,000, 28,000। चलिए जी, बढ़िया है, इतना हमारा काम हो गया। बाकी देर आर कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है, जो जैसे ही कहानी आगे जाती है बता देता हूँ मैं। मशीनरी को बेचा, फर्नीचर को बेचा, स्टॉक को बेचा, 18,000, 14 एंड 35,000। बेचो, पैसा आप बैंक में डालो, तो डाल दिया जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अब ये तो बहुत पुरानी बात है। ऊपर टोटल 67,000, और एक एक करके हमने बाय बैंक का नीचे लिख लिया क्या क्या बेचा, कितने के लिए। हाँ, ये हो गया, तो आगे मत पढ़ना, बीच में एक
हिडन एडजस्टमेंट आप बोल सकते हो। मशीनरी से जो 18,000 आया उस पे सबसे पहला हक लोन का होता है, क्योंकि लिखा गया है सिक्योर्ड बाय मशीनरी। उसका जो कंट्रोल है, जो पैसा आया है मशीनरी बिल, वो लोन वालों के पास था। तो आपको बैंक से एकदम से पैसे निकालने हैं और आपको लोन को 18,000 देना है, पूरा 30 नहीं, सिर्फ जो मशीनरी से आया 18,000। तो चलो जी, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 18,000 और ऊपर बाय लोन 18,000। मैं वापस ये याद दिला देता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ। अगर अभी मैं आपसे पूछूं आपको क्रेडिट को कितना देना है, 50,000। बट अगर मैं आपसे पूछूं लोन को कितना देना है, 30 मत बोलना, 30 से तो 18 दिया ना, आपको 12,000 देना है। सिर्फ याद रखना, ये ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। चलिए जी, ये भी हो गया। फिर रियलाइजेशन के 2,000 रुपये का खर्चा हो गया। हाँ जी, कर लेते हैं, बैंक करेगा और कौन करेगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट 2,000 रुपया। लास्ट टाइम के प्रॉब्लम में श्वेता नाम की पार्टनर ने पे किया था, आज नहीं हुआ ऐसे। ओके फिर खबर ऐसी थी कि भैया प्रीति नहीं जी, प्रिया और प्राची से कुछ नहीं मिला और प्रीति के जायदाद से 3,400 मिला। ले लो, कल हो ना हो ले लो। तो हमने प्रीति से पैसे लिए और बैंक में डाले 3,400। तो आपको ऊपर नज़र आएगा बैंक डेबिट टू प्रीति कैपिटल और ठीक मेरे पीछे आएगा बाय बैंक 3,400। बाकी दो पार्टनर्स नाम के, कुछ पैसा वैसा दिया नहीं उन्होंने। हाँ, अब क्या क्वेश्चन में कुछ नहीं है जी, ख़त्म हो गया है। तो हम बंद कैसे करें? देखो, इसमें हिडन एडजस्टमेंट नहीं होता, इसमें आपको स्टेप 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 फॉलो करने पड़ते हैं। आपने एडजस्टमेंट्स किए, बढ़िया है। स्टेप 3 बोलता है अभी तुम टैली रियलाइजेशन अकाउंट को कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप ढूंढ लो। तो जी ढूंढ लेते हैं। 88,000 डेबिट जो हैवी है, डिफरेंस आया 21,000, तीनों पार्टनर्स में बटेगा 1/3 1/3 1/3, 7,000 7,000 7,000। सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर, यहाँ पर, हाँ आ गया। इसके बाद आप ये पार्टनर का खाता बंद करो, डेफिशिएंसी ढूंढो तीनों का, कौन सा पार्टनर, कोई भी पार्टनर, क्योंकि तीनों लोग कंगाल हैं। और फिर जो डिफरेंस आता है वो डेफिशिएंसी अकाउंट में लिख लो, ट्रांसफ़र करो। मैं थोड़ा पोजीशन बदल लेता हूँ तो वो क्लियर होता है ना। अगर हम प्रीति का क्रेडिट टोटल ले, क्योंकि वो हैवी है, 43,400, उनका डिफरेंस आता है 8,400, ये उनका डेफिशिएंसी है। प्रिया पे आप नज़र मारे तो बहुत यूनिक सिचुएशन है, दोनों साइड 35,000, तो कोई डिफरेंस नहीं है, ये बहुत यूनिक होता है। प्राची का डेबिट हैवी है, तो क्रेडिट में आपको 10,000, जिसका जितना जिधर आंसर आया डेफिशिएंसी में ट्रांसफ़र करो। तो अगर आप प्रीति का डेबिट ट्रांसफ़र करोगे तो वो डेफिशिएंसी में बाय आएगा। तो प्लीज़ नीचे आप नज़र रखें, बाय प्रीति कैपिटल 8,400। और अगर आप प्राची का बाय डेफिशिएंसी करो, डेफिशिएंसी में 2 आएगा, विच इज़ 2 प्राची कैपिटल। सो रियलाइजेशन अकाउंट रफा दफा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रफा दफा, जो आंसर आया डेफिशिएंसी में। अब जो अहम मुद्दा है, और वो अहम मुद्दा क्या है, ओके सॉरी, चलो मैं जगह पे आ चुका हूँ, वो है जो ऊपर का बैंक अकाउंट है ना, उसको आप टैली करो और ढूंढो आपके पास कितना पैसा है। ये सब मैंने स्टेप्स में लिखा है, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 देखो, टैली कैश बैंक, फाइंड अवेलेबल मनी। अच्छा, तो मतलब
ढूंढो तुम्हारे पास पैसे कितने हैं। देख डेबिट का टोटल है 8400, माइनस करने पे आता है 6400। ये बैंक में बचा हुआ पैसा है 6400, 60,400। अगर मैं आपसे पूछूं, अरे तुझे याद है क्रेडिटर को कितने पैसे देने हैं? 50,000। लोन को कितने पैसे देने? 30 मत बोल, 12,000, क्योंकि 18,000 दे दिए। तो क्रेडिटर का 50 और लोन का 12, टोटल तो मुझे लगता है 62 हुआ। तेरे पास कितना पैसा है अभी? 6400। तो पूरा पैसा तो नहीं है जी, देना है 62,000 और है 60,400। तो क्या करूं? देख भाई, अगर ज़रूरतें ज़्यादा है और पैसे कम, ऐसा नहीं है कि आपको मम्मी ने लिस्ट दिया 10 आइटम का और पैसे दिए, आप गए मार्केट में और मालूम पड़ा 10 आइटम खरीदने के लिए तो पैसे नहीं है, तो आप ऐसे ही घर पे चले आए, कुछ नहीं खरीदा। तो मम्मी 2 नहीं 4 इधर दो खींच के देगी, बोलेगी अरे बाबा जो इम्पोर्टेंट था वो तो खरीद के लाना था, कुछ तो खरीद के लाना था। उसी तरह अगर आप पूरा पे नहीं कर सकते क्रेडिटर को, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि वो गलत होगा। क्या सब पहला 50,000 क्रेडिटर को दे दो, बाकी का बचा हुआ लोन? बिल्कुल नहीं। आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि पायदान लेवल क्रेडिटर का और लोन का सेम है। आप बोलोगे सर कैसे, क्रेडिटर को देना है 50,000 और लोन को देना है 12,000, तो क्रेडिटर तो बड़ा हुआ ना? नहीं, बड़ा ज़रूर हुआ, तो उसको ज़्यादा पैसे देना, पूरा नहीं। लोन का कोई कसूर नहीं है। आप जब दो लोगों के साथ बातचीत करते हो, जस्ट बिकॉज एक का साइज़ बड़ा है, आप उसके साथ साइज़ बड़ा है, बड़ा आदमी, ऐसा नहीं है भैया, अक्ल पता नहीं है क्या नहीं उसके पास। अगर आपको दो लोगों को पैसे देने हैं, यहाँ पे क्रेडिटर और लोन दोनों का लेवल सेम है, भले ही क्रेडिटर की वैल्यू ज़्यादा है, पेएबल अमाउंट ज़्यादा है। जस्टिस, न्याय क्या होता है? जो पैसे आपके पास है उसमें से ज़्यादा क्रेडिटर को देना और थोड़ा कम लोन को देना, बट सेम टाइम पे देना। ये बिल्कुल गलत होगा। अगर आप बोलो पहले पूरे पैसे क्रेडिटर का दे दो, बचा कुचा में हम लोन का चुट्टा कर लेंगे, गलत। दोनों लोग सेम लेवल पे हैं, उनको अनसेक्योर्ड लाइबिलिटी ऐसे कहा जाता है। बट अभी वो जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये ढूंढना है कि ये जो 6400 है, ऊपर आपने देखा मैंने लिखा क्रेडिटर और लोन, कि हम कैसे उनको पैसे देंगे। मैंने एक वर्किंग नोट, एक वर्किंग नोट मतलब लंबी कहानी है, पूरा मेरे उस स्क्रीन पर आने वाला है। पहले एक्सप्लेनेशन कि द बैलेंस अवेलेबल in the bank is to be distributed to the creditors and loan in the ratio of the balance amount payable। कितना देगी आपको रेशो ढूंढना पड़ेगा। किसका रेशो? 2:3, 4:5, कि उनको जो पैसे देने हैं उसका। पैसे कितने देने हैं? क्रेडिटर को 50,000, लोन को पहले 30 था बट अभी 12। तो ये 50 और 12 का आपको एक रेशो ढूंढना है। ओके, 0 कैंसिल करेंगे तो मुझे 25:6 आता है, मतलब अपॉन 31। आपके पास बैंक में कितना पैसा था? 60,400। इसमें से आप क्रेडिटर को 25/31 और जब लोन की बारी आएगी तो 6/31। ये रेशो होता है। पहले रेशो ढूंढो और उसमें बंटवारा करो। ये इसके पहले के प्रॉब्लम्स में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पहले के प्रॉब्लम्स में आपके पास दो क्या कहते हैं कर्जे नहीं थे, दो पेएबल्स नहीं थे। ओके, थोड़े अलग लाइबिलिटीज़ थे। इसके लिए ये प्रॉब्लम काफ़ी खास है। ओके, तो क्रेडिटर को 48,710 आप जब मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो राउंड ऑफ आपको करना है।
राउंड ऑफ करना है। ओके, और जो लोन का पेमेंट है 11,690, अगेन राउंड ऑफ करना है। ओके, प्लीज़ नोट, वो डेसिमल्स में अगर आता है तो राउंड ऑफ करो। तो आपने एक रेशो ढूंढा, यही जानकारी मैं ऊपर के अकाउंट में बता रहा हूँ आपको। 50,000 इस टू 12,000 जो आता है 25:6। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने किया ऑलरेडी मैंने पीछे आपको नेक्स्ट पेज पे बता दिया था, 48,710, 11,690, मेन पार्ट ये था। जब पैसे कम है, पेमेंट ज़्यादा है, तो क्या करूं, और दो लोग खड़े हैं सामने, दोनों को पेमेंट दो, ज़्यादा को ज़्यादा, कम को कम, बट उनके रेशो में पेमेंट दो। ओके, अगर खाना कम है, एक इत्तू सा बैठा है और एक इत्तू सा बैठा है, दोनों को खाना दो, जो ज़्यादा है उसको थोड़ा ज़्यादा दे देना, जो कम है उसको कम देना, बट सेम टाइम पे खाना देना। आपने पहले लिखा बाय क्रेडिटर, तो क्रेडिटर में आया टू बैंक बराबर, और फिर ऊपर आपने लिखा बाय लोन, लोन में आया टू बैंक। बैंक अकाउंट निपट गया, क्रेडिटर का अकाउंट बंद करो। डेबिट में डिफरेंस 1,290, और वो टू डेफिशिएंसी जाएगा, डेफिशिएंसी में बाय, ठीक मेरे सिर के ऊपर 1290। लोन अकाउंट बंद होगा, उसका डेबिट में बहुत छोटा सा डिफरेंस 310 टू डेफिशिएंसी ठीक मेरे ऊपर, बाय लोन 310। दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, द सीक्वेंस, सब पहले क्या टैली किया, रियलाइजेशन, फिर पार्टनर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट, और सबसे इंपॉर्टेंट गाड़ी वापस स्लो हो गई, क्योंकि बैंक में कितने पैसे थे ढूंढने पड़े, दो लोगों को बांटने थे, उनका हमको रेशो ढूंढना पड़ा, नॉट पार्टनर का रेशो, उनका रेशो, उनके अमाउंट का रेशो बराबर, जो था 50,000, 12,000, और उस रेशो में पैसे हमको बांटने पड़े। ओके, बैंक बंद किया, फिर क्रेडिटर बंद हुआ, लोन बंद हुआ, और अभी आखिर में डेफिशिएंसी बंद होगा, जो दोनों तरफ पे 10,000 और 10,000 होके हो जाता है। स्टेप्स ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी में बहुत अलग, अजीब नहीं, अलग रहते हैं। तो उसके लिए मैंने सारे स्टेप्स 1 2 3 4 बड़े ढंग का आपको लिखकर बताया है, और जब इसका PDF बनेगा, ये सब कुछ आपके लिए अवेलेबल रहेगा। याद से उसको हमारे टेलीग्राम के प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर लेना। आशा करता हूँ कि आपको ये वाला प्रॉब्लम समझ आ गया, इसमें जो कलाकृति की गई और जो एक्सप्लेनेशन दिया गया हो गया होगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लेना। अगर हमारे पुराने मित्र हो तो लेक्चर की लिंक को दूसरों के साथ साझा ज़रूर करें, और अगर हमारे नए मित्र बने हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बाकी अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखें। जब तक हम दोबारा ना मिले, गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।